So today we will see about the gram positive and the gram negative bacteria. So basically the gram positive and gram negative bacteria are further classified into their shapes on the basis of their shapes. Either these are the rod shape, that is called the bacilli, and the second is the spheres or the cocci shape, that is the coccus. Okay, so let's see about it. So this is the gram. This is the gram. It can be positive or it can be negative. So firstly we will divide it on the basis of their shapes. So first is the cocci and second is the bacilli. Cocci means spherical or coma shape, and the bacilli are rod shaped bacteria. So these cocci can be positive and negative. Similarly, this bacilli can be positive and negative. So how to remember the different microbes that are given here? So the first microbes or the category, that is the gram positive cocci, that is this. So the mnemonic that I am giving to you here is, यहाँ पे मैं आपको निमोनिक दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है. सो दिस इज द पॉजिटिव वेयर लॉस स्टेप्स. पॉजिटिव VIR वेयर LOSE loss steps. Okay, so this positive means, so here this positive means the positive, that is this, and the where is the bacteria that I will discuss here, and this is 0 or the O means the spherical shaped. ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है. So VIR means variance. The first is the variance, VIRIANS, that is the variance, and the second is the L for the lactococci. Okay, and the third, that is the SO means the this cocci spherical shape. Okay, and now coming to the S, that is the staphylococci. COCCI, staphylococci. Then the fourth, that is the E, that is the enterococci, and the fifth, streptococci. Okay, STREPTOCOCCI. ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है, और मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखोगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है. ओके, एंड नाउ कमिंग टू द ग्राम नेगेटिव कोकाई. सो दिस इज द ग्राम नेगेटिव कोकाई. ग्राम नेगेटिव कोकाई. सो यहाँ पर सिर्फ आप एक ही माइक्रोब अभी याद रखिए, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पर एक माइक्रोब आप याद रख सकते हैं, नीसीरिया. NEISSERIA. Okay, so this is the thing. And now coming to the gram positive bacilli. So this is the gram positive bacilli. So the mnemonic for it here is this list of, that is the list, LIST, list of बासी, दैट इज द BACI. हम हिंदी में बोलते हैं ना, कोई चीज बासी हो जाती है, खराब हो जाती है. सो लिस्ट ऑफ बासी एक्ट टू कॉर्न. एक्ट टू मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए. एक्ट टू पॉपकॉर्न होते हैं जैसे. सो एक्ट टू कॉर्न एंड bottle of some drink. Okay, so the mnemonic is list of basi, act to corn and bottle. ठीक है, so I hope this is easy for you to understand. I am saying that this is the list of basi, that is the basi. Basi से आपको याद रहेगा कि ये bacilli के अंदर हमने डिस्कस किया था, so that you do not get confused कि whether this positive of cocci is मर्जिंग विद द पॉजिटिव ऑफ बेसिली. तो आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है कि यहाँ पे हमने बासी यानी बेसी वर्ड यूज कर दिया है, सो इट इज रिलेटेड टू द बेसिली ओनली. एंड यहाँ पर हमने ओ यूज किया था इन द लोस, सो इट इज रिलेटेड टू द कोकाई ओनली. ओके, सो द नंबर ऑफ माइक्रोब्स हेयर इज,
first is the listeria, listeria. Okay, this is the listeria. Then second is the list का मतलब listeria हो गया. Then bacilli यानी bacilli हो गया. So that is the bacillus, bacillus, bacillus. Then the third is about the actinomycetes. So this is the act. Okay, so actinomyces, okay. एंड देन द फोर्थ, एक्ट 2 की बात खत्म कर दी. एक्ट के साथ हमने 2 इसलिए यूज किया था, सो वी यूज दिस 2 विद द एक्ट वर्ड सो दैट यू कैन रिमेंबर, बिकॉज एक्ट 2 इज अ मार्केट प्रोडक्ट. पॉपकॉर्न का एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी. एंड नाउ कमिंग टू दिस कॉर्न, दैट इज द कॉर्नीबैक्टीरियम, CORNEY, BACTERIUM. Okay, and now the fifth is the bottle, that is the botulinum, BOTULINUM. तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है. एंड नाउ कमिंग टू अवर लास्ट, that is this gram negative bacilli. So this is the gram negative bacilli. तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? Now I am again changing the color of this pen so that you can easily differentiate. So the mnemonic here is Nalla Yar Coli, that is the Nalla Yar, या फिर हिंदी में लिख दे हम इसको यार, कोली, KOLI, कोली, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, pseudo, 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 vibrator, 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 and Campa Cola, having helium gas, ठीक है. तो ये निमोनिक था. सो दिस वाज द निमोनिक हेयर. Okay, so what I am saying here that Nalla Yar Koli, so Nalla means the negative word. So negative word होता है, बस आप एक बार इस चीज को समझ लो. Now I am using this word again in the microbes. And यार मतलब दोस्त, friend, right? And the Kohli is the good player of Indian cricket team, and he brought what? Pseudo vibrator, एक वाइब्रेटर लाया अपनी टीम के लिए. एंड द कैंपा कोला, सो कैंपा कोला इज ए गुड ब्रांड, बिग ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विच हैज हीलियम गैस. ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये निमोनिक याद रखना है. सो नल्ला यार कोहली ब्रॉट व्हाट, क्या लाया? सूडो वाइब्रेटर लाया, एक तो वाइब्रेटर फॉर द मसाज फॉर द प्लेयर्स, एंड द कैंपा कोला, और कैंपा कोला लाया अपने टीम प्लेयर्स के लिए जिसमें हीलियम गैस थी. ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सो नल्ला के ऊपर आप देखिए कि बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जहाँ पर इस तरह की जो साउंड प्रोनाउंस होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए साल्मोनेला, शिगेला, SHIGELLA, शिगेला. देन क्लेबशेला, KLEB, SIELLA, क्लेबशेला. देन लिगोसेला, LIGOSELLA, लिगोसेला, या फिर लिगोसेला, LIGOSIELLA, लिगोसेला. देन पास्ट्यूरेला और पास्ट्यूरेलिया, ऐसा कुछ होता है माइक्रोब, पास्ट्यूरेलिया. ठीक है, देन ओके, तो ये माइक्रोब्स थे जो नल्ला पे आ रहे थे. देन यार, यर्सीनिया. सो यार का मतलब हो गया क्या? यर्सीनिया. सो यार मीन्स यर्सीनिया, YERSENIA. okay, now moving Yersinia. Now the next, that is the coli means E. coli. okay, so coli का मतलब हो गया E. coli. then brought what? pseudo. तो pseudo में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? pseudomonas, PSEUDOMONAS, pseudomonas. then vibrator, so vibrator से vibrio आ गया, VIBRIO. okay, and then the next is the Campa. so Campa Cola is a big brand, you can check about it. आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, और हाल फिलहाल में भी रिलायंस ने इस ब्रांड को शायद खरीदा भी है. ठीक है, कैंपा कोला एक बहुत पुराना बेवरेज का ब्रांड है.
इंडिया में तो खास तौर पे। तो इसको हम देखते हैं अभी। कैंपा का मतलब क्या हुआ? कैम्फाइलोबैक्टर, CAMPHYLOBACTER, ओके, कैम्फाइलोबैक्टर। देन विच हैज़ व्हाट? हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? हीलियोबैक्टर, HELIOBACTER, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर एक ये वर्ड रह गया तो कोला। सो कोला से आप क्या याद रखोगे? सो द वर्ड कोला स्टैंड्स फॉर द कोलेरा, CHOLERA। सो कोलेरा अक्सर भारत में पहले बहुत बड़े तादाद में फैला करता था, जहाँ पर गंदा पानी लोग अक्सर पीने में यूज़ किया करते थे। सो ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। सो एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। और इसमें रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको निमोनिक के लिए। सो यू कैन नॉट रिमेंबर दीज नंबर ऑफ माइक्रोब्स easily, ठीक है। सो I started with this thing, that is the gram positive bacteria and the gram negative bacteria. So these can be classified on the basis of their shape into cocci or bacilli. So cocci means having the spherical or the coma shaped bacteria, and bacilli, these are the rod shaped bacteria, okay. And now talking about the mnemonics. So the mnemonic, the first mnemonic is about the gram positive cocci. So the mnemonic for it is this, that is the positive vir loss steps. So positive वीरे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना वीरे, क्या हाल है, तो यही वाली चीज़ है यहाँ पर। सो जो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक माइंडसेट वाला एक बंदा था, उसने अपने स्टेप्स खो दिए, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव वेयर लॉस स्टेप्स, okay. So this vir means virions, then the L for the lactococci, so this is the cocci, and then the S for the streptococci or the staphylococci, and the E is the enterococci, and then the last is the streptococci, ठीक है। so this was the easy thing, and then the next is about the gram negative cocci, ठीक है। so this is the single example that I am giving to you here, that is the Neisseria, NEISSERIA, okay. And after that, now moving to the gram positive bacilli. So the mnemonic for it is a list of Basi, that is the Bessie, Act 2 corn and bottle. So Act 2 is a big brand of popcorn, ठीक है, and the list, that is the list of Basi. So you are giving some list, ठीक है, आप किसी को लिस्ट दे रहे हो, so you are giving a list of corn and bottle to someone, ठीक है। so इस तरीके से आपको so by this way you can remember the mnemonic. So the list is the listeria, and the Basi, that is the Bessie, that is the Bacillus, and then the Act 2, that is the Actinomyces, and the corn, that is the Cornybacterium, and then the last, that is the bottle, is the Botulinum, okay. And then the last is the gram negative bacilli. This is related to like Nella Yar Kohli brought pseudo vibrator and Campa Cola having helium gas for their team members, okay. So Nella में यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे words आ जाते हैं which has having this kind of pronunciation. So Salmonella, Shigella, Klebsiella, Legionella, Pasteurella, right. So these are some of the microbes having the pronunciation of this Nella, okay. And then and also Nalla is kind of negative word in North Indian, especially in Haryana and in Delhi region. So the negative means the Nalla means, ठीक है, both are having the same kind of meaning, okay. So मैं इस चीज़ का मतलब आपको अभी तो नहीं बताऊंगा कि इसको हरियाणा में क्या कहा जाता है, but please try to understand this is kind of a negative word. And then the yar means friend, okay. So Yersinia, okay. And then the coli, so E. coli, and then the vibrator or the pseudo vibrator. So pseudo is the pseudomonas, and then this vibrator means the vibrio, and then this campa, that is the campylobacter, and then this cola is the cholera. So cola का मतलब cholera हो गया. So this is the cola here and this is the cholera here, and then the having helium gas, so heliobacter. So I hope these microbes were easy for you to understand कि इन microbes के बारे में आप अच्छे से समझ पा रहे हो. And also one more thing that you can see here that the salmonella एक microbe है, and then this E. coli is the another microbe. तो इन चीज़ों के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फूड फैक्ट्री और इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट, देन यू सी दैट कई बार माइक्रोबियल एनालिसिस में ई कोलाई और साल्मोनेला की एनालिसिस अक्सर की जाती है. द रीज़न बीइंग दैट, एंड साल्मोनेला की ज़्यादातर नहीं की जाती रादर, क्योंकि साल्मोनेला एक तरह का पैथोजन है और इसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है एनालिसिस के लिए. आप
खुद से नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। और इकोलाई की भी शायद कर सकते हो या नहीं कर सकते, यू कैन चेक विद द क्वालिटी पीपल। सो द थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट कि अगर साल्मोनेला या इकोलाई आपको कहीं पर पाया जाता है तो पॉसिबल चांसेस ये रहते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कंटेमिनेशन हो रही होती है कहीं ना कहीं इसकी अनहाइजेनिक कंडीशंस की। मतलब जो सपोज किसी फैक्ट्री में अगर इन माइक्रोब्स को पाया जाता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वहाँ पर जो लोग फ्लश होकर आ रहे हैं या जो लोग टॉयलेट्स होकर आ रहे हैं वो अपने हाथ सही से नहीं धो रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द प्रीवियस ईयर इन डिफरेंट एग्जाम्स, सो आई एम गिविंग यू राइट नाउ। So these are the questions that I am giving you here. तो अभी हमने ऊपर ये चीज़ें डिस्कस की एंड नाउ आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन हैव कम इन द CBT TO 2022, दैट इज द 2022 इन द CBT 1 ऑफ TO, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। अभी इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंटेरोबैक्टीरी की फैमिली, ठीक है। एंटेरोबैक्टीरी जब यहाँ पर ये लास्ट में इस तरह का शब्द आ जाता है तो इट मीन्स ये एक फैमिली को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब एंटेरोबैक्टर होने का मतलब क्या है? एंटेरोबैक्टर मतलब होने का ये है कि these microbes are found in your intestines, INTESTINES, इंटेस्टाइन में ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर खाना अल्टीमेटली डाइजेशन फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं। सो द पैथोजेंस लाइक इकोलाई, साल्मोनेला एंड एंटेरोबैक्टर, दीज आर सम ऑफ द जनरल इन दिस क्लास। सो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू कि जब तक इकोलाई हमारे इंटेस्टाइन में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू योर फूड इट बिकम्स वन ऑफ द हैजार्ड, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन फीकल कोलिफॉर्म्स, सो मैंने आपको बताया कि जो फीकल है ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन हैज द फिसिस और द फीकल। सो द फीकल कोलिफॉर्म विच कैन ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस बिलोंग टू दिस क्लास। सो दिस इज अगेन ट्रू एंड दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक। सो यस दिस इज अगेन ट्रू, क्योंकि एंटेरोबैक्टर का मतलब ही यही होता है कि दोज माइक्रोब्स विच आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट इज लार्ज फैमिली ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। व्हाट? सो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर नल्ला वर्ड आ गया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है सो इट मीन्स दिस शुड बी ग्राम नेगेटिव, दिस शुड बी ग्राम नेगेटिव। एंड अगेन इकोलाई, दैट इज द, हमने यहाँ पर अभी एक इसका निमोनिक पढ़ा कि नल्ला यार कोली। सो कोली मीन्स, सो हियर यू कैन सी दैट कोली इज द इन द नेगेटिव, सो ग्राम नेगेटिव bacilli. So it is a gram negative. So how can it be gram positive here? So this statement is false. So it means the answer is fourth because the incorrect statement was asked. So I hope कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बिकॉज एंड आई टुक दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। ये मेरी ही रिस्पॉन्स शीट है। सो दिस इज माय रिस्पॉन्स शीट, okay। And the next question is about the, so which of the following bacteria will stain purple color after gram staining? अभी एक चीज याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। सो ग्राम पॉजिटिव विल गिव यू पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव कलरलेस रहते हैं और सम येलो कलर। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, सो वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम अगर बोल रहे हैं, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ग्राम पॉजिटिव इज काइंड ऑफ so staining is a kind of a technique to identify which kind of microbe you are studying. So the gram positive will give you the purple color and gram negative will give you the colorless or the yellow color. It depends on the color dye that you are using, okay। So यहाँ पर पूछा गया है कि विल गिव यू द पर्पल कलर। पर्पल कलर का मतलब ये है कि जो माइक्रोब होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव होना चाहिए, सो इट शुड बी ग्राम पॉजिटिव, ओके। सो लेट्स सी, सो द ग्राम इक्वलाई, दिस इज द नेगेटिव, ओके। सो इट कैन नॉट बी द आंसर। सो सूडो वर्ड आ गया यहाँ पर, सो इट इज अगेन नेगेटिव, ओके। देन यर्सीनिया नल्ला यार कोली, सो यार, दिस इज द यार
कोली, एंड दिस इज द स्यूडो वाइब्रेटर, PSEU। सो स्यूडो वाइब्रेटर हमने पढ़ा था, एंड दिस इज द कोली, कोली हमने पढ़ा था। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज द बैसिलस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ए। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि दिस इज द बैसिलस दैट इज गिवन हेयर इन द ग्राम पॉजिटिव। ओके, सो आई होप दिस वाज द इजी थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको यहाँ पर अभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और पूछिए ज़रूर, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखना बहुत ईजी है और इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी भी है, ताकि इस पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बिना उसमें किसी दिक्कत के आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको अच्छे से। सो आई विल कम अगेन विद सम अनदर टॉपिक ऑन सम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो जिससे आप कम समय में बहुत अच्छे से चीज़ों को ब्रॉडली कवर कर सकते हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, so till then, bye bye.